My dear students, all of you are welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agrawal going to represent a very beautiful essay. The name of the essay is Third Thoughts by E.V. Lucas. The essay is from the Phantom Journal published in 1919 1919 में पब्लिश हुई और जर्नल का नाम था फैंटम. The essay illustrates many of the qualities of E.V. Lucas as an essayist. His style was considerably influenced by Charles Lamb. His intimate acquaintance with Lamb's works, he undertook an elaborate edition of works of Charles and Mary Lamb, colors his own essays. चार्ल्स लैम्ब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. उनका पूरा इन्होंने वर्क ध्यान से पढ़ा चार्ल्स लैम्ब का, और उनके एसेस का प्रभाव इनके एसेस पर आ गया. ईवी ल्यूकस के बहुत ही बढ़िया ऐसे है. पर्सनल थॉट्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर कर दिए. एक्चुअली द ऑथर मेक्स इट क्लियर इन द बिगिनिंग ऑफ द essay that the story was told to him by a friend. The hero of the story was a man who was usually unfortunate in his business transactions. In his own words, "It is my destiny to buy in a dearest markets and to sell if I succeeded in selling at all in the cheapest." कवि लेखक यहाँ पर बताता है कि उसका भाग्य कैसा रहा कि जब कोई चीज़ बेचता है तो बहुत सस्ती बिकती है और जब खरीदता है तो बहुत महंगी बिकती है. बट एन एक्सेप्शन टू दिस रूल टुक प्लेस द अदर डे. ही हैड पुट थ्रू ए सक्सेसफुल डील. लेकिन इसके विपरीत हुआ एक दिन उसके साथ में और उसकी डील बड़ी सफल हुई. वंस ही वॉन्डर्ड एमलेसली, निरुद्देश्य घूम रहा था, अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, and he came upon a portfolio of watercolor paintings. Amongst them there was one drawing which attracted his attention at once. बीच में कोई आ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सुनते रहेंगे, कैरी ऑन करेंगे. He thought that it might be a possible turner. He asked the dealer its price. The dealer himself was not sure about its being a genuine turner, so he said that he would sell the picture for 10 shillings. He told him that its price would be very high indeed if it was a genuine turner. The buyer pretended to conceal his own opinion about the picture by hesitating as to whether he should pay 10 shillings demanded of him for the paintings. At last he bought the painting. Later it was discovered to be a genuine turner and he sold the picture for 50 pounds. पहली बार ऐसा हुआ कि सस्ते में खरीदी और महंगे में बेची. He felt elated. बहुत फूल करके बहुत कुप्पा हो गया एकदम से, कहते हैं ना हिंदी पंजाबी मारवाड़ी, फूल के कुप्पा जाना, खूब फोड़ जाना. इट वॉज परहैप्स हिज फर्स्ट सक्सेसफुल डीलिंग. द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स दैट आई अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 49 pounds 10 and was duly elated. I then began to think. In the first flush of his elation, he decided that he should, in fairness to the dealer, share his profits equally with him. So he wrote a short note about his successful transaction and his decision to make the dealer a share of his good fortune. But as he had no stamps and the hour was late, he did not post the letter then,
वो पत्र जो लिख रहा था ना दूसरे व्यापारी को अपनी फेयर ट्रांजैक्शन के बारे में, तो उसके पास डाक टिकट नहीं थी, इसलिए पत्र तो लिख दिया था पर डाक टिकट के भाव में भी उसने पोस्ट नहीं किया। ही वेंट टू बेड एट 3:30 AM। ही वॉकअप 3:30 बजे उठा एंड कुड गेट नो स्लीप फॉर सम टाइम। कुछ समय नींद भी नहीं आई खुशी के मारे। ही बिगेन एज यूजल ऑन सच ओकेजन्स टू रिव्यू द मैनी एरर्स ऑफ हिज लाइफ। मॉर्निंग में उठ करके वो अपनी एरर्स को, अपनी गलतियों को रिव्यू करता है, दोहराता है, देखता है कि कौन कौन सी मेरे से लाइफ में गलती होती हैं और आगे से ना हो ऐसी। He then remembered his latest success in connection with the Turner painting. This led to an examination of the letter he had written to the dealer. He now felt that to give away half of his profit would be piece of quixotic gallantry. उसने एक वो तय कर रखा था कि आधा उसको वो धन देगा। आफ्टर ऑल इट वॉज ही हिमसेल्फ हु हैड डिटेक्टेड द टर्नर। फिर उसके दिमाग में आया कि यार बेचने वाले ने तो बेच दी, उसको तो पता ही नहीं था ये ओरिजिनली टर्नर यही है क्या, पर ये तो मैं वो मेरा दिमाग है जिसने इसको खोजा है। द डीलर हैड नॉट डन एनीथिंग। डीलर ने तो कुछ किया ही नहीं, उसने खरीदी और बेच दी। टू रिवार्ड द डीलर वुड बी टू रिवार्ड इनएफिशिएंसी एंड फुलिशनेस। अब ऐसे में यदि डीलर को रिवार्ड दिया जाए, इसका मतलब इनएफिशिएंसी को, अयोग्यता को, मूर्खता को पुरस्कार देने वाली बात है। सो ही डिसाइडेड टू सेंड ओनली 10 pounds टू द डीलर। इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि जिससे खरीदी थी ना और खुद ने खूब प्रॉफिट बनाया था, तो उसको केवल 10 पाउंड ही दिए जाएं। ही थॉट दैट इट वुड बी मोर देन एडिकेट। ये तो बहुत ज़्यादा है। ही फेल्ड टू गेट स्लीप। नींद नहीं आई। ही टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन स्टोरी। द स्लीप स्टिल रिफ्यूज्ड टू ओबलाइज हिम। देन ही अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर। फिर डीलर के बारे में सोचने लगा। नींद तो आ नहीं रही थी, कहानियाँ भी पढ़ रहा था। हिज थॉट्स रैन दस। उसके विचार फिर ऐसे दौड़ने लगे। वाई सेंड हिम 10 pounds। 10 भी क्यों दें? इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर, सो स्पार्टिंग एज आई। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड। अब ये ऐसा पत्र भी डाल दूँ तो वो हर डीलिंग पे हर रोज़ इस प्रकार से उम्मीद करेगा और मैं नहीं बेच पाऊँगा तो वो डिसअपॉइंटेड होगा। नो 10 pounds इज़ एब्सर्ड पहले कह रहा था 50% दे दूँ, फिर कहता नहीं 10 pound, फिर कहता नहीं ये भी मूर्खता की बात है, 5 वुड बी प्लेंटी। 5 pound पर्याप्त होंगे उसके लिए। उसने किया क्या? कुछ नहीं किया। While he was dressing the next morning, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रेसिंग कर रहा था, he thought about the dealer again. He thought that giving 5 pounds to the dealer meant showing disrespect to the goddess of business who had smiled on him for the first time. 5 पाउंड भी देने का मतलब जो व्यापार की देवी है, पैसे की लक्ष्मी देवी है, जो पहली बार उस पर मुस्कुराई है, और उसको देने का मतलब उसका निरादर अपमान करना है। सो ही डिसाइडेड टू सेंड जस्ट 1 pound। उसने कहा इंस्टेड ऑफ 5 की जगह 1 ही पाउंड उसको देगा, अकम्पनीड बाई ए ब्रीफ नोट, और एक ब्रीफ नोट के साथ। सो ही रोट ए नोट एंड पुट इट इन एन एनवेल्प। एक लिफाफे में वो नोट रखा जो लिखा था, अलॉन्ग विद ए चेक ऑफ 1 pound, और एक 1 pound चेक के साथ में। ही हैड द एनवेल्प इन हिज पॉकेट, और वो लिफाफा अपनी पॉकेट में रखा। व्हेन ही वेंट टू द क्लब फॉर लंच, जब वो लंच के लिए गया क्लब में, दैट आफ्टरनून ही लॉस्ट सो हैविली एट ब्रिज, और वो ब्रिज के ऊपर बहुत हार गया। गेम जो होता है उसमें, ताश के गेम से पैसे वाला, उसमें बहुत हार गया। ही वॉज ग्लैड ही हैड नॉट पोस्टेड इट, और वो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे अच्छा हुआ कि मैंने उसको ये 1 pound भी नहीं भेजा और कुछ नहीं भेजा। डिस्ट्रॉइंग द एनवेल्प, उस लिफाफे को फाड़ते हुए, एंड द कंटेंट्स ही सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने कहा, बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर।
खरीदना बेचना, खरीद फरोख्त तो एक पूर्ण डीलिंग है बेचने और खरीदने वाले के बीच में। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एग्जॉर्ट। जो डीलर है, व्यापारी, वो मैक्सिमम एग्जॉर्ट करना चाहता है, एक्सटॉर्ट करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके दूसरों के पॉकेट से धन निकालना चाहता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इन इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर, और उसके लिए कोई वो ऑब्लाइज भी नहीं करता। तो डीलर और कस्टमर के बीच ये तो डीलिंग है जिसको फेयर तरीके से करते हुए अपना प्रॉफिट और लॉस है उसको खुद ही बियर करना चाहिए। ये उसने एक अपने जीवन की ऑटोबायोग्राफिकल नोट इसके अंदर प्रस्तुत किया, ठीक वैसे ही किया है जैसे चार्ल्स लैम्ब भी प्रस्तुत करता है। तो ये हमें उसका एक सब्जेक्टिव आर्टिस्ट के रूप में चार्ल्स लैम्ब की तरह ईवी ल्यूकस भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। इनका पीरियड है 1868 टू 1938। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत डिटेल में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हमारे हरियाणा और हिमाचल और उससे ऊपर JNK वगैरह, ये सब बच्चों के लिए, और हिंदी, पंजाबी, मारवाड़ी स्पीकिंग बच्चों के लिए कर दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।